Student, very good morning all of you. And today uh, I'm going to attend my maiden class, my first class in class 11th. The name of lesson is the book. First I will tell you about the book. I'm going to teach you English Snapshot class 11th. There are 8 chapters in this book. So this is English literature book. There are 2 books in English literature in class 11th. So today you have to study, you have to read, you have to understand, you have to do conversation with me on first chapter of this book, The Summer of Beautiful White Horse. This is the first chapter and it is very interesting chapter. And so today before teaching this lesson, I want to introduce about this lesson. This lesson belongs to two brothers, and they are very uh, curious about their future dream. Means Aram and Murad. There are two child and boy. We can say that there are too curious about their dream, and they took a wrong decision for wholesome for their dream. They stole a horse, and that was the against of their tradition and against their tribes, against their family, because they are known for their honest behavior, they are known for their loyalty. So this lesson is very important for you and it is very interesting. The name of lesson is The Summer of the Beautiful White Horse. Means the summer of the beautiful white horse. The meaning is very clear here. So this story is about two poor Armenian boys. Here the story is about two poor Armenian boys. यहाँ पर ये जो कहानी है दो आर्मेनियन बॉय, दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की है. हुज होल मार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. जिनका एक चिन्ह है, होल मार्क है, वो है ट्रस्ट और ऑनेस्टी, विश्वास और ईमानदारी, जिसके लिए ये ट्राइब्स जाना जाता है, परिवार जाना जाता है. तो आपको अब यहाँ से देखना है. वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered a crazy by everybody who knew him except me, come to my house at 4 in the morning and woke up me and tapping on the window on my room. अब यहाँ से आप देखो. वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड एज. यहाँ पर जो राइटर है अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है कि एक दिन की बात है, एक दिन की बात है पुराने दिनों को याद करते हुए, जब मैं 9 साल का था, तो वह जो वर्ल्ड था, जो संसार था, हर तरह से काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी चीज़ों से भरा हुआ था. फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस. मैग्निफिकेंस मतलब होता है सौंदर्य, शानदार, शान से भरा हुआ था.
पुराने दिनों की बात कर रहा है। एंड लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटफुल, और जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही खुशनुमा थी और मिस्टीरियस थी, मतलब रहस्यनुमा थी। मतलब थोड़ा सा और मैं इसमें नैरेट करना चाहता हूँ बच्चों, क्योंकि जो हमारा बचपन होता है ना, वह बहुत बहुत मिस्टीरियस होता है। उसमें हम बहुत काल्पनिक होते हैं। जैसे हमें अगर कोई चीज़ कोई कह देता है तो उस पर हम बिलीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमसे अगर कोई कह दिया कि उस घर में मत जाना, वहाँ भूत है, तो एक इमेजिनरी पिक्चर हमारे माइंड में आ जाता है। उसी तरह ये राइटर है कहता है कि ऑन वन डे बैक in the good old age when I was 9 and the world was full of every imaginable kind magnificence and life was still delightful and mysterious dream, my cousin मुराद, वो कहता है कि मेरा जो कजिन है वो मुराद, मेरा कजिन मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी, कंसिडर्ड मतलब होता है विचार में, विचार से, या ऐसा लगता था कि वो थोड़ा क्रेजी था, थोड़ा सनकी था, थोड़ा पागलपन था उसके अंदर। बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जितने लोग उसको जानते थे सिवाय मेरे, उनको ऐसा लगता था कि वो थोड़ा सा मुराद मतलब थोड़ा सा क्रेजी है। कम टू माई हाउस, मेरे घर आता है, एट 4 in the morning, सुबह के 4 बजे, एंड वोकअप मी ऑन टैपिंग, टैपिंग मतलब होता है खड़खड़ाना, थपथपाना, मेरे कमरे के विंडो को थपथपाता है, खड़खड़ाता है और मुझे जगाता है। आराम, ही सेड, वह कहता है आराम, उसने बुलाया। आई जम्प्ड आउट बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं बिस्तर से कूद कर बाहर निकला और देखा, खिड़की से बाहर झांका। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं क्या देखा। It wasn't it wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was dreaming. राइटर कहता है कि अभी सुबह नहीं हुई थी, अभी थोड़ी भोर थी और गर्मी का मौसम था, गर्मी का समय था, और वर्ल्ड, संसार में हर कॉर्नर पे, हर कोने में कुछ मिनट में होने वाले जो सुबह था, सुबह होने वाला था, ऐसा लग रहा था। परंतु उसी समय पर्याप्त रोशनी थी, मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी फिर भी, और मैं जान गया था कि मैं सपना नहीं देख रहा था। मतलब उसको बिलीव हो गया कि वो जो देख रहा है अपने सामने अपने भाई को, वो सपना नहीं है, वो हकीकत है। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. कहता है कि मैंने बिस्तर से उठकर देखा तो मेरा जो कजिन था मुराद एक सफ़ेद घोड़े पर सवार था, और मैं बिस्तर से उठकर अपने आँख को मैं रब किया तो मैं देखा कि यस, ही सेड इन आर्मेनियन, इट इज़ हॉर्स। आर्मेनियन भाषा में मुराद कहता है, उसका भाई कहता है कि हाँ ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी तैयार हो जाओ अगर तुम्हें सवारी करना है। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world's my mistake, but this was more than even I could believe. आई न्यू माई कजिन मुराद, मैं जानता था कि मेरा जो भाई मुराद है, इंजॉयड बीइंग अलाइव, हर चीज़ को इंजॉय करता है, अलाइव रूप में, मतलब मूर्त रूप में, अमूर्त रूप में नहीं, लाइव, अलाइव, देन एनीबडी, दूसरों की अपेक्षा, इल्स हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड, जो इस संसार में आए हैं बाई मिस्टेक, गलती से। बट दिस वाज मोर देन आई कुड बिलीव, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा मुझे विश्वास था जो मैं कर सकता था। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. In the first place, पहले स्थान पे, my earliest memory, जो मैं पहले की यादाश्त है, had been memorized, जब मैं उसको याद करता हूँ, of horses, घोड़ों के बारे में, on my first longings had been to longing a ride, मेरा पहला विश था कि मैं घोड़े की सवारी करूँ, तब मैं चाहता था कि मैं घोड़े की सवारी करूं। थोड़ा सा और नरेट कर दे रहा हूं यहाँ पर। राइटर को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा पता था कि मेरा चचेरा भाई जो
जोश या उमंग से भरा है, उसे ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, पर इस दुनिया में गलती से वो आ गए हैं। पर मेरा विश्वास सीमा से बाहर था। पर कहता है कि सबसे पहली बात मेरी ये है कि जो पहली घोड़ों की यादें थी, मेरी पहली इच्छाएं जो घोड़ों की सवारी करने की थी वो थी, अब मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ, ऐसा वो कहता है। तो बच्चों, टुडे इज द फर्स्ट डे, so I am giving you very short video. From tomorrow I will give you a continue. This is very interesting chapter, you can study to yourself on visit to YouTube. So the summer of beautiful hearts, you should watch it. Thank you, have a good day.